कई लोगों ने इसमें भी मजे लिए। लोगों ने क्या कहा कि कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसकी गर्दन भी काट दोगे तो भी वो जीवित रहेगा, और कॉकरोच किसी भी कंडीशन में मरता नहीं है आसानी से। बहुत 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 खराब कंडीशन में भी कॉकरोच सरवाइव कर सकता है। तो कई लोगों ने तो कहा डायनासोर भी मर गए, मतलब बड़े बड़े इस टाइप के लोग, कॉकरोच हमेशा जीवित रहा। गर्दन कटने के बाद भी ये साइंटिफिकली प्रूवन है, 7 से 10 दिन तक कॉकरोच जिंदा रहता है, गर्दन काट दी जाए तब भी। यानी ये दिखा रहे हैं कि आपने जो शब्द हमें दिया है ना, उसको हमने पावर बना लिया। तो ये नई पार्टी हमारे सामने है, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ रहे हैं। ये है कॉकरोच जनता पार्टी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये टक्कर दे रही है किसको? बीजेपी को। हाँ, अगर संख्या की बात करें, संख्या बल की, तो ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स ज्यादा हो गए। इसने बेटा करोड़ों तक पहुंचा दी अपनी। क्या पता जब तक मैं ये क्लास ले रही हूँ इसके बाद जाके देखूं तो ये पता चला 1.5 करोड़ को भी क्रॉस कर गए। बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं, बहुत तेज, क्योंकि यंग बच्चे हैं। इंस्टाग्राम पे है कौन? इंस्टाग्राम पे यंग क्राउड है, एक देख के दूसरा फटाफट फटाफट फॉलोअर्स। ये जो पुरानी पार्टी है ना, ये ग्राउंड पे काम करती थी, तो इनको फॉलोअर्स इकट्ठे करने में टाइम लगता था, प्लस बुजुर्गों की थी। अब ये क्या है? यंगस्टर्स की पार्टी। इसमें वो 30 साल का लड़का अभिजीत, दीप के नाम है उसका, उसने स्टार्ट किया। उसने मजाक के तौर पे स्टार्ट किया, और आज देखो पूरे देश में सबसे बड़ी जो बातचीत है, जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है, वो यही बन गई, कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। और इसके मीम्स भी इतने मजेदार बना दिए कि ये कॉर्पोरेट में भी कॉकरोच बैठे हैं, हर जगह अच्छे कपड़े पहना के कॉकरोच बना रखे हैं कि अब ये जो पीढ़ी है, और सब कह रहे हैं मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच। कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि मान लो ये पार्टी बन गई तो क्या अपना नाम ये यही रखेगी, और क्या कॉकरोच पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन पाएगी? जैसे मजाक के तौर पर ही सही, लेकिन एक बात सच्चाई है कि सच में जनता दुखी है। यंग नौजवान दुखी हैं बेरोजगारी से इस टाइम। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play
टाइम आएगा जब बदलना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज को। राघव चड्ढा जैसे लोगों को कुछ दिन के लिए यंग क्राउड ने अपना लीडर माना, लेकिन फिर राघव चड्ढा का क्या हुआ? फाइनली वो भी आपने देखा, उन्होंने नीट के मामले पे कोई बात ही नहीं कही। जैसे ठीक है आप एक पार्टी के हैं, बहुत अच्छी बात है, किसी किसी पार्टी को कोई ना कोई ज्वाइन करता है, लेकिन बेटा गलत को तो गलत कह ही देना चाहिए ना। अगर नीट का मामला है तो मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान कह सकता है कि इसमें कुछ गलत नहीं हुआ, क्या फ़र्क पड़ गया, पेपर लीक हुआ। अरे जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे 6-6, 8-8, 10-10 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बेचारों के आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं। जिनके पास पैसा भी नहीं है ना, उधार लेके किसी से ब्याज पे लेके अपने बच्चों को हॉस्टल में डालते हैं लोग कि पढ़ लें, उनकी 1.5-2 लाख की फीस भरते हैं। तो उन सब के साथ कितनी बड़ी चीटिंग है। और अब ये इतना सिर पे से उतर गई बातें कि अब ये हजम नहीं होंगी। अब सच में एक ऐसा टाइम आएगा जब लोग क्वेश्चन पूछेंगे और उसमें हेल्प करेगी पॉलिटिक्स की समझ। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहिए कि कम से कम अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को हम आम जनता तक पहुंचा सके, हम जानते हों। तो आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, कॉकरोच जनता पार्टी। मैक्सिमम लोग इसके साथ जुड़ गए और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज चालाकी से अपना दिखाने के लिए कि हम भी इसके साथ हैं, वो आजकल वो कर रहे हैं कि मैं भी कॉकरोच हूँ, मैं भी कॉकरोच हूँ, इसको प्रमोट कर रहे हैं कि भाई हम भी इस पार्टी के साथ हैं। तो देखते हैं अब इसका अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो लोगों के अंदर गुस्सा है वो दिखाई देगा कम से कम पॉलिटिकल सिस्टम में बैठे ताकतवर लोगों को, कि अगर लोग 7 दिन में एक साथ करोड़ों लोग जुड़ सकते हैं तो मतलब कोई तो है जो हमसे परेशान है। अब वो नौजवान हैं, युवा हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बुजुर्ग लोग कम हैं, वो अलग बात है, वो अधेड़ उम्र की आंटी भी नाचती हुई आ जाती हैं, लेकिन मेजॉरिटी अभी भी जवान बच्चों की है और जो समझदार है, जो जानते हैं कि क्या गलत है क्या ठीक, और जो गलत नीतियों का विरोध करने का दम रखते हैं। तो अच्छी बात है। अब देखते हैं अगला स्टेप क्या होगा, कॉकरोच पार्टी कितने दिन तक टिकेगी, क्या कुछ होगा। कहीं ऐसा ना हो झूठे एलिगेशंस लगा के किसी तिकड़मबाजी में फंसा के और पकड़ लिए जाएं। इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी तो है ना बेटा, झूठे केसेस में फंसा के किसी को कहीं से उठा लेते हैं। तो अब देखते हैं। पर हाँ, करंट में सबसे बड़ा मुद्दा देश में हर एक न्यूज़ चैनल पर, हर एक जहां चले जाओ, वो कॉकरोच जनता पार्टी है, नई पार्टी। मैंने आपको जनता पार्टी पढ़ाई थी 1977 से, जो 80 तक काम करके गई थी। तो ये नई पार्टी है, अगर कुछ कर पाई तो आज से 20 साल बाद कोई पढ़ाएगा कि ऐसे कॉकरोच जनता पार्टी भी बनी थी एक बार। लोगों की उम्मीदों पे देखो, क्या पार्टी बन पाएगी, सच में क्या होगा। मजाक के तौर पे शुरू हुआ है, लेकिन एक पूरा आंदोलन खड़ा हो गया, करोड़ों लोग जुड़ गए, ये बहुत बड़ी बात है। चलो, नरेंद्र मोदी का मतलब 100 स्मार्ट सिटी, नरेंद्र मोदी का मतलब अच्छे दिन, नरेंद्र मोदी का मतलब महंगाई एकदम 0। कहीं महंगाई है नहीं, जो महंगाई बोल दिया देशद्रोही कहीं का, कोई महंगाई नहीं बोलेगा। पाकिस्तान चल जाओ, और किसी को महंगाई से दिक्कत, नेपाल चल जाओ। 2014 में एक महान व्यक्ति ने वादा किया था कि हम काला धन लेकर आएंगे, लेकिन इत्तेफाक से काला धन उसे कहते हैं जिसके बारे में किसी को पता न लगे। ठीक है, समझ गया। काला धन तो लाए नहीं, उल्टे उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड ले दिया कि आप चंदा हमको या कांग्रेस को, बीजेपी को, जदयू को, आरजेडी को, किसी को भी चंदा दे दीजिए, बताने की जरूरत नहीं है चंदा कहां से आया। नहीं समझा गया, कितना काला धन आ गया पता ही नहीं चला। जबकि उन्होंने ही बोला था कि इतना काला धन विदेश में है कि यदि वो काले धन को लाया जाए तो देश के हर एक नागरिकों को 15-15 लाख रुपए मुफ्त में मिल जाएंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप 15-15 लाख रुपए मत दीजिए, एटलीस्ट वो काला धनवा लेके आइए कि देश की स्थिति इतनी फकीरों वाली ना हो कि अपने सैनिकों को पैसा देने को ना पड़े, तो अग्निवीर जैसी घटिया और वाहियात योजना लाना पड़े। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे। दोस्तों, आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा। बात तो सही है, किए होंगे। आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा, 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ये राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, हो गया दोगुना, आत्महत्या रेट भले बढ़ा होगा। क्या बात कर रहे हैं? नहीं हुआ ना, ये सबसे बड़ा बेवकूफी है ये चीजें। आज हमको क्या करना ये नहीं दिख रहा है, आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है, बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। और भारत अलगे नशा में घूम रहा है, विश्व गुरु। जगह तुमको श्रीलंका आंख दिखा के जा रहा है, मालदीव विश्व गुरु है, विश्व गुरु।
आई लाइचीदाना बराबर देश मालदीव हमारे सैनिकों को वापस भेज दिया। अरे इसको मारने की भी जरूरत नहीं है, इससे 30 किलोमीटर दूर परमाणु बम का परीक्षण पनिया में करते ना तो सुनामी उपट जाता। सही पकड़े हैं। याद रखिएगा, इस देश को अगर कोई सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है तो न्यूज चैनल पे बैठी ये 20 कन्याएं, ये चुट्टे सब देश में बैठकर मुख्य मुद्दों पे चर्चा नहीं करते हैं। सब चुट्टा सब ये सशस्त्र विद्रोह कराएगा सब देश में। तुम देखना, इनके बाप का देश नहीं है इन हरामियों का, क्योंकि हिम्मत नहीं है कि बलात्कारी नेताओं से सवाल पूछ सके। उन्नाव का एगो रेपिस्ट था, उसके खिलाफ हम आवाज उठाए थे। अच्छा। और हम बोले थे कि जमानत कैसे दे दिया गया, तो वो हमारा ऊपर केस कर लिया कि तुम खिलाफ कैसे, हम कभी दिखाएंगे आपको। हम कहते कर ले केस। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पहचान गए, इसको पहचान गए। इसको बेचारा को तो मंदिर का घंटी बजा दिया। कोई भी आता है बजा के चल जाता है, कभी कोई भड़ुआ बोल देता है, कभी कोई दलाल बोल देता है। दलाल अरे भाई साहब, इनको तो बस पूछता है भारत। अरे पूछता है भारत। ये एक दिन जीडीपी पे बहस कर रही थी, हमको बड़ा हंसी आया कि भाई साहब जीडीपी पे बहस करने निकले। इनको पता भी होगा कि जीडीपी निकलता है कितने टाइप से। जीडीपी 3 टाइप से निकलता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी। ये पूरा जीडीपी में बहस करके इसको यही पता नहीं होगा कि कौन सी जीडीपी में बहस हो रहा है यहाँ पर। और ये लोग जीडीपी में बहस करने लगते हैं। हमारी 142वें नंबर की मीडिया लगता है आपके मुद्दों को उठाएगी। अभी मीडिया आप खोलिए, कोई भी बंगाल चुनाव ऐसे होगा, अभी मजा आएगा ना। तो मौलाना बैठे होगा, एगो इधर कौन इस पार्टी का कोई उस पार्टी का लड़ रहा है। मुर्गा लड़ाओ। बचपन में हम लोग मुर्गा लड़ाते थे, अब न्यूज वाला ना ऐसे आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। अभी मजा आएगा ना। यही होता है जब आप 12वीं फेल गजेड़ी चर्सी को आप क्या दे देते हैं, शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है। लेकिन कंगना के साथ उल्टा है, उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी, वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, भीख मांग रही। लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोकतंत्र में नहीं है, हम भीड़ तंत्र में। अगर हम आज प्रधानमंत्री से ये सवाल कर देते हैं कि आपने बड़ा उम्मीद से बोला था कि हमारे यहाँ 100 स्मार्ट सिटी होंगी, सही पकड़े हैं। ये मेरा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला नहीं हो पाया, गंगा साफ नहीं हो पाई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाया, किसानों की इनकम डबल नहीं हो पाई, तो लोग ये नहीं पूछते कि आप जो पूछ रहे हैं वो गलत है। आप ये कहते क्यों पूछ रहे हो? ये भगवान क्या जुल्म है। अब हमको ये नहीं समझ में आता है, तो शायद हमें लगता है कि हमसे गलती हो गई। हमें ये सवाल सी जिनपिंग से पूछना चाहिए या डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग नाराज हो जाते हैं। या तो फिर हमको मनमोहन सिंह से पूछना चाहिए, नेहरू से तो पूछेंगे नहीं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? लोकतंत्र की असली चीजें तो यही होती है। यदि हम आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, यदि हम आपको मतलब राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर बात बोले या बदतमीजी वाली भाषा बोले, जरूर सवाल कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम यही कह रहे हैं कि आज 5 रुपया जो 1 रुपया किलो चावल दे रहे हैं, 2 रुपया किलो गेहूं चावल जो दे रहे हैं, 5 किलो भात, उसको पकाने के लिए 1100 रुपये वाला सिलेंडर लगा। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। अभी बता है भाई, अभी बता है। इलेक्शन होता है इंडिया में 1951 में, और सरदार पटेल जी की आकस्मिक मृत्यु होती है 1950 में। तो फिर कैसे बना सकते हैं? जब आप कोई इंसान इलेक्शन से पहले ही मर जाते हैं। तो अब कुछ लोग का कहना है कि नहीं, जो एंट्रीम गवर्नमेंट थी 3 साल की ना, उसमें क्या कर लेते? लॉर्ड माउंटबेटन बैठा हुआ था, आपका सेनापति नहीं था। क्या बात कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री बन के ही क्या कर लेते? जब सेनापति आपके, जनरल बूचर था सेनापति। 1948 की लड़ाई में क्या हुआ? जनरल बूचर ने सेना ही नहीं भेजा। बात तो सही है। तो क्या कर लेते? तो बस ये है कि हम किसी को पसंद करते हैं, उसके अंध में हम किसी को गाली दे देंगे। सही पकड़े हैं। आज बिहार के करीब 9 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है, और मोदी की गारंटी है अगले 5 साल भी मिलता रहेगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। इस देश में किसानों को 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगा दिया गया, ये शर्म की बात है। तो इसे शर्म ना करके उपलब्धि गिनाया जा रहा है। तो मैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ,
इससे शर्म की बात क्या हो सकती थी? गजब बेइज्जती है। मेरी जिम्मेदारी मेरी फैमिली को है। क्या अगर हम ये उठ के कहें मैं अपने परिवार को 5 किलो राशन देता, कोई हमको अच्छा कहेगा? नहीं। लेकिन इस देश में इसको उपलब्धि गिना जाता है। आपको मानसिक रूप से हत्या कर दी गई है। आप जिंदा रहने को विकास समझ रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर आपको सलाह देनी होती प्रधानमंत्री को, 3 सलाह ऐसी आप क्या देंगे कि सबसे पहले आप ये करिए, देश की 3-4 ये जो समस्याएं हैं ये सॉल्व हो जाएंगी। अभी बता दे भाई। हम देखते हैं कि कहीं छापा पड़ा तो नोट गिनने की मशीन आ रही है, 200 करोड़ पकड़ा गया, 100 करोड़ पकड़ा गया। हम आपसे पूछते हैं वो पैसा गया कहाँ? कभी सुने हैं? कभी उसको भी दिखाया कि पकड़ा नहीं गया कहाँ? सरकारी खजाने में जाता है, वो क्यों नहीं दिखाते? इस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं। वित्त मंत्री कितना जीएसटी लगाई है? 18%। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन पर। मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाल जलेगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सेकेंड हाईएस्ट टैक्स किसी देश में एजुकेशन पे ठोक सकते हैं? आप कभी कल्पना कर सकते हैं एजुकेशन पे टैक्स ठोकेंगे? शर्म है कुछ? इंग्लैंड जैसा अमीर देश एजुकेशन फ्री देता है, जहाँ हार्वर्ड, कैम्ब्रिज ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, वहाँ पर एजुकेशन। और हम शर्म करो शर्म। सबको पता चल गया मीडिया बिक गई है। शर्म लग रहा है? जब भी सुसाइड करने का मन करेगा आप एक बार इन मीडिया वालों को देखिएगा, 161वीं रैंकिंग पे खड़े होने के बाद भी मेकअप पोत के आते हैं सर। हम लोग लाज लगेगा अगर आपकी रैंकिंग 183 के बीच में 161 हो जाए, आप लाजे गांव ना जाएंगे। इन 100 को चढ़ के चिल्लाता है यहाँ पे। गजब बेइज्जती है। नंबर 1 चैनल, नंबर 1 मतलब चौपट करने में सबसे ज्यादा योगदान तुम्हारा ही है। भारत में अगर कोई मीडिया ये कहता है कि हम नंबर 1 है, मतलब चौपट करने में कौन है? तुम ही है यहाँ। कितना घटिया चीज है कि कोई मरीज मर रहा है, उसको ऑक्सीजन चल रहा है, डॉक्टर लगा हुआ है, बचा लो बचा लो। बात तो सही है। उसको CPR दे रहा है, वेंटिलेटर लगा रहा है, इधर टैक्स वाले लगे हैं सब। मरा कि नहीं, टैक्स लाओ 12%। ये भगवान क्या जुल्म है। ला बच गया 12% लाओ। वो टैक्स लेने की जगह है? शर्म है कुछ? यहाँ डॉक्टर लोग बैठे, आप खुद से सोच के टैक्स लेने की जगह है वो क्या? मतलब आप सोना पे 3% टैक्स है। सोना कोई खरीदे, हीरा खरीदने जा रहा है 3%, मर रहा है तो 12% 18%। वाह मोदी जी, वाह। हमारे देश का प्रधानमंत्री कभी आपको टेक्नोलॉजी पे बात करते हुए नहीं दिखेगा। हमारे देश का प्रधानमंत्री हम जहां आज हैं उससे पहले 5 साल पहले जहां थे वहां से नीचे आ चुके हैं अभी, और अगले 5 साल में यही हाल रहा तो हम सिर्फ नीचे जाएंगे। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। अमेरिका का सिर्फ एक आदमी एलन मस्क दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। हमारा अडानी सिर्फ सरकार से 1-1 रुपए में जमीन लेकर के और पैसे बना रहा है, और उसी बांग्लादेश को जमीन दे रहा है जिस बांग्लादेश से दुनिया को शिकायत है। शर्म करो शर्म। हम कर क्या रहे हैं भाई? हमारा कोई विजन नहीं है। लोग कहते हैं मोदी वाज विजनरी। अरे मोदी जी का विजन बीजेपी पार्टी को लेकर के है, नथिंग एल्स। सही पकड़े हैं। देश को लेकर के विजन, युवाओं को लेकर के विजन, टेक्नोलॉजी को लेकर के विजन, देश के जो लड़ने की ताकत है बाकी के देशों से उसको लेकर के विजन। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कुछ सिर्फ टाइम पास चल रहा है। कभी बाबूजी विदेशी दौरे पे है तो कभी बाबूजी किसी भगवान के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, उसका तांडव हो रहा है, दर्शन कराओ चुपचाप, आके फिर अपने काम पे लग जाओ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन नहीं, उसकी बारात निकलती, जो एक बारात हुई वो तो समझी नहीं। मजा आ रहा है सब बारात निकलवाने में, खून खोला पड़ा मेरा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मेड इन इंडिया ड्रोन ने पाकिस्तान के हथियारों की पोल खोल करके रख दी। ड्रोन तो बना नहीं पा रहे हैं, दूल्हा का ड्रोन बनाने वाला चाइना से आ रहा है, जबकि युद्ध ड्रोन पे चला जा चुका है। कभी इतना वाहियात मजाक बोलेंगे। इनका एक वायरल कर दिया, पीछे से आलू आगे से सोना, जबकि पूरा वीडियो देखे हैं। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। ये हो गया आपका आधा सच। अरे साला, अब देखिए पूरा सच। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। अरे रुको जरा, सब्र करो। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, और अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए 3000 रुपए दो। अरे अभी हम दोनों का टाइम खराब चल रहा है, आपका तो कुछ ज्यादा ही खराब चल रहा है। हमारा तो नॉर्मल है, कुछ लोग हैं लोग जो बढ़ के हैं, आप तो ज्यादा लोग बढ़ के। मेक इन इंडिया, तो स्टार्टअप इंडिया, फोटोकॉपी मशीन में जैसे फोटोकॉपी होता है ना, वो इंडिया में नहीं बनता। हम लोग को क्या है ना कि खुद से शक्तिशाली होना पड़ेगा। अब किसके दम पे कूद रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री के जहाज जिसमें उड़ते हुए अमेरिका से आया, तुमको क्या लग रहा है वो अमेरिका से दुश्मनी लगी?
जिन्होंने जहाज में बैठ के अमेरिका जाते हैं, अमेरिका क्या होता है हमारे जहाज में बैठ के आया है। हमारी एयरफोर्स जिस पे उतराती है, राफेल फ्रांस हंसता होगा हमने बना वाला है, सुखोई रूस हंसता होगा हमने बना वाला है। गजब बेइज्जती है। अपाची हेलीकॉप्टर भाड़ा पे लेके मिले हमने बना वाला है। हम भाड़ा पे लेके जब इतना खुश होते हैं, सोचो उसका मालिक कितना खुश होता है। भारत में अगर किसी का डायलिसिस हो रहा है तो उसकी मशीन जर्मनी से आई होगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? किसी का अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो मशीन जर्मनी से आई होगी। किसी का सीटी स्कैन हो रहा है तो मशीन जर्मनी से आई होगी। MRI हो रहा है तो मशीन जर्मनी से आई होगी। एंजियोग्राफी हो रही है तो मशीन किससे आई होगी? जर्मनी से। रेडिएशन हो रहा है तो मशीन जर्मनी से आई होगी। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमने क्या किया है, तो उस बेशर्मी की तरह उस पर 12% GST लगा दिया है। सोचिए, एक तो हम बनाए नहीं है, अब बेशर्मी की हद देखिए कि अगर कोई चीज आ रहा है ना तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। शर्म है कुछ? शौक से जाएगा कि चल हम आज MRI कराते हैं, नहीं वो बेचारा दुविधा में है, कंफ्यूजन में है कि कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, इसलिए MRI कराने जा रहा है। अच्छा, सही पकड़े हैं। कितना हंसते होंगे सब जर्मनी वाला, इतना छोटा है सब, कहा से कि अभी ले MRI मशीन ना बना पाया। मेक इन इंडिया, तो स्टार्टअप इंडिया, फोटोकॉपी मशीन में जैसे फोटोकॉपी होता है ना, वो इंडिया में नहीं बनता। तो टीवी देखा था, टीवी में जो मीडिया में चल रहा था कि हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया है, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया है, उसके बारे में ये अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम अभी मजा आएगा ना। अरे इंडियन मीडिया वाले सब, तो हमको तो लग रहा था कुछ ये पत्रकार सब जो हो गए हैं 3 फीट का पाइप खरीद के और लाहौर घुस गया। तो लग रहा है कि क्या हो गया है, ये नहीं समझ में आ रहा। और उसमें पीछे से सायरन, अभी की ताजा खबर कराची से। एक तो कोई है, कोई चैनल वाला, हम यहाँ नाम नहीं बोलेंगे, वो तो पाकिस्तान पार करके अफगानिस्तान घुस गए। हमारे यहाँ आज भी देखिएगा, लोग चाहे जितना भी कह दे, हमारे यहाँ देश से ऊपर, हमारे यहाँ सबसे ऊपर धर्म रखा जाता है। धर्म के बाद जाति आती है, जाति के बाद राजनीति आती है, राजनीति के बाद देश आता है। सही पकड़े हैं। यही कारण है कि देश के लिए आप आवाज उठाइएगा, शायद ही कोई आएगा। आप धर्म के लिए आवाज उठाएंगे, सारे लोग दौड़ जाएंगे। तो उसके बाद कहेंगे कि हमारे देश का विकास नहीं हो रहा है, गरीबी नहीं खत्म हो रही है, महंगाई बढ़ गई है, सड़कें साफ नहीं है। भाई, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था तुम्हारा धर्म, तुम्हारी जाति और तुम्हारी राजनीतिक पार्टी। क्या बात है सर, क्या बात है सर।